Hello students. So democracy ensures that all eligible citizens have equal rights to participate in governance and whatever level local, regional and national. Development in India. One of the earliest instances of democracy in a civilization was found in the Republic of Ancient India, which were established some time before in 6th century BC, prior to the birth of Gautam Buddha. These republics were known as Mahajan Pads, and among these states, Vaisali in Bihar was the world's first republic. The democratic Sangha Gana Panchayat system were also used in some republic. The panchayat system is popular even today in Indian villages. In fact, it is the backbone of the democratic setup. As we know that it is a backbone of our democratic system. So, Athenian democracy. So, the city state of Athens, Greece was among the फर्स्ट डेमोक्रेटिक इन एंशियंट टाइम. पहले के टाइम पे, पुराने टाइम पे सबसे पहला डेमोक्रेटिक हमारा जो था एथेंस जो है स्टेट, जो कि ग्रीस में है, वहाँ पे इसका लागू किया गया था डेमोक्रेसी. द वर्ड डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ग्रीक टर्म मीनिंग रूल बाय द पीपल. इसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल. और ये कब हुआ था? अराउंड 508 BC. All male citizens of Athens, everyone was eligible, however, assembled at a particular place and votes were cast and decisions were needed to be taken. The Athenian brand of democracy did not allow the delegation of responsibility or decision making to elect persons. ठीक है, उनके पास कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था जो चुन करके डेमोक्रेसी में के हिसाब से जो बनाए जाते थे वही. Democracy in modern societies. The emergence of modern democracy is linked in Europe. The Glorious Revolution of 17th century in England and the French Revolution in 18th century, the France greatly contributed its development. फ्रांस का एक कंट्रीब्यूशन था उसके डेवलपमेंट में, जो कि यूरोप से लिंक है 17th century में. Glorious Revolution laid the foundation of the first democratic principle rule of people. In also we will understand it more briefly. Also we will discuss all these things. So आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे. इन Last paragraph, page number 164. In Southeast Asia, political divisions in both Korea and Vietnam escalated into wars. वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, डिवीज़न करने के लिए कोरिया और वियतनाम जो है उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया. While various powers with polarized political system from the West, China and Soviet Union brought pressure to bear in the region to comfort their particular type of ideology. Thus, democratic and non-democratic forces clashed in these countries where kings were in flux. तो वहाँ भी राजशाही चल रहा था और डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब कि लोकतंत्र या फिर लोकतंत्र को मानना है या फिर लोकतंत्र को नहीं मानना, नॉन डेमोक्रेटिक. इसी के लिए वहाँ पे क्लैश हुआ, युद्ध हुआ. New waves of democracy swept across Europe in 1970s and late 1980 when representative government were instituted in the southern, central and eastern nations of Europe respectively. So mainly we have to focus that characteristics of democracy. ठीक है, इसका मूल इसका क्या क्या है. एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र को चलाने के लिए इसका
मेन कौन कौन से पार्ट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला है सोवर्जिनिटी। इन डेमोक्रेसी सोवर्जिनिटी रेस्ट विथ पीपल, ठीक है, हु आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। क्योंकि लोग ही हैं जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, क्योंकि लोग के बिना, ठीक है, कि किसी का सरकार नहीं चल सकता। गवर्नमेंट गेट्स ऑल इट्स पावर, वही चीज़ इसमें भी बोला जा रहा है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलता है? पीपल के द्वारा। फिर है इक्वालिटी। जब हम लोग के पास जब इक्वालिटी होगा तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। अगर हम लोग एक साथ मिल करके जो चीज़ मानेंगे, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, कलर, ठीक है ना, एवरी इंडिविजुअल गेट्स इक्वल इकोनॉमिक, ठीक है ना, और सबको इक्वल इकोनॉमिक मिलना चाहिए। ये नहीं कि कास्ट के हिसाब से किसी को कुछ दिया जा रहा है, ठीक है ना। पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स भी सबका बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं। फिर है फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, फ्रेंडशिप एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। फ्रेंडशिप भी होना चाहिए और पीसफुल को आपस में को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, आपस में मेल भाव होना चाहिए। ये नहीं कि आपस में मतभेद होना चाहिए। इट प्रमोट्स म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना हुआ होता है। अगर दूसरे समुदाय के लोग भी अगर लोकतंत्र के द्वारा जीत करके जाते हैं और अपना सरकार बनाते हैं, तो वो उनका और हमारे साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेंथ होता है विच अल्टीमेटली स्ट्रेंथेंस द नेशन। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इसका एसेंशियल मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी का। इन डेमोक्रेटिक सेटअप एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। और डेमोक्रेटिक सेटअप में सभी लोग फ्री हैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपना ओपिनियन को रखने के लिए, कुछ उनका जो भी ओपिनियन अपना रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया लिबर्टी। लिबर्टी इनेबल्स एवरीबडी टू स्ट्राइव फॉर पर्सनल बेटरमेंट, ठीक है। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर जस्ट मीन्स टू एंड। और in a democratic government, the state and government are considered to mere means for fulfilling the interest of the individual, ठीक है ना। दोनों का आपस में भी सही रूप से होना चाहिए। Therefore, state and government always try to promote the interest of the people। और दोनों को मिल करके चलना चाहिए ताकि वो पीपल का जो जिस चीज़ में जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करें। Provision of rights. The provision of rights made in the Constitution is a symbol of a perfect and healthy democracy. So, in a democratic government, people are provided social, economic, religious, political, and cultural rights. People safeguards are also installed for the protection of such rights, ठीक है। फिर है नेक्स्ट रेगुलर इलेक्शंस। और बीच बीच में जो इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, ये भी होना चाहिए। रूल ऑफ मेजोरिटी। और मेजोरिटी का जो रूल है कि जिसका ज़्यादा एमपी या एमएलए जीत के जाते हैं, जिसका मेजोरिटी जाता है उसका सरकार बनता है, तो ये होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ। इन डेमोक्रेसी द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड लॉज। सब कुछ फिक्स लॉज हैं, उनके कुछ फिक्स कानून हैं विच आर सुप्रीम। एवरी इंडिविजुअल हुएवर मे बी बॉन्डेड टू ओबे देम। अगर कोई अपना सरकार का गठन करता है और जो लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको मानना होता है सभी को, ठीक है। ये नहीं कि रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहे हैं, एक लॉ सबके लिए है। फिर है प्लूरलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर फ्रीडम टू form political parties in a democratic setup. People from different political parties on basis of different ideologies to acquire political parties, ठीक है। डिफरेंट आइडियोलॉजी का भी होते हैं, सबका अपना अपना
अलग अलग आइडिया के होते हैं। एक्वायर पॉलिटिकल पावर, फेयर एंड ओपन कंपटीशन टेक्स प्लेस एमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। फिर है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोग डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी अगले चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। और कुछ चीज़ें आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसका नोट कर दिया गया है, आप लोग के पास वर्ड मीनिंग वगैरह शेयर किया गया है, आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे और इसको एक बार रीडिंग आप लोग कंटिन्यूसली अपने हिसाब से भी मार के समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मेरा वीडियो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि और भी वीडियोज़ आप लोग को मेरी तरफ से और स्कूल की तरफ से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।